नमस्कार एवरीवन, हेलो, जय श्री राम। दिस इज पीपल्स एंकर सुरभि मनास। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द गोल्डन वर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट टू टुडेज पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट में बहुत ही खास व्यक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनकी जिंदगी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेरी श्रृंखला मेरी जिंदगी की कहानी। और आज की हमारी जो गेस्ट है वो है श्रीमती सुनीता मन्हास जी। वेलकम मैम। थैंक यू। सुनीता मैम देहरादून के एक बहुत ही प्रसिद्ध रेजिडेंशियल स्कूल में मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एचओडी ऑफ सोशल स्टडीज भी हैं। एंड सुनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आपकी ज़िंदगी की जो जर्नी है एज एन एजुकेटर वो बहुत लंबे सालों से चलती आ रही है, आपको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो एज एन एजुकेटर हाउ इट ऑल बिगिन, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, इसके बारे में हमें अगर आप बताएं। ये लाइक जब मैं खुद एक विद्यार्थी थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एट दैट टाइम माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर, सो इट वाज इन माय पैशन टू बी एन टीचर. So when I was myself a child, I used to give tuitions after 12th class to the children. And after that, my first school I joined, that was the convent, the St. Xavier School in Jammu. Right. So basically, my education journey started as a teacher from the Jammu. Wow, wonderful. So ma'am, since you mentioned that you have roots in Jammu, so how come you came to Dehradun? How that transition began, and how the lifestyle in Jammu is very different from Dehradun? So when I was like in Jammu, I got married in when I was 19-year-old. I was still studying. I was All right. in my uh, third year of BA. Okay, so I got married. After that, I completed my B.Ed, and after married, I completed my M.Ed as well. So after there was no support, my education, it totally credit I want to give to my parents. They supported a lot after marriage, and like I had a baby after 1 year of marriage. So they look after her, and they forced me to complete my education, and it was my ambition also to complete my education. So that is why I completed my whole education, and I got married. And after marriage, my husband was working in the ONGC. So head office of ONGC was in Jammu. Yes, 100. So when militancy began in 1992 in Jammu Kashmir, it was on the peak. So at that time, people refused to go to Jammu. So at that time, that headquarters from the Jammu got shifted to the Dehradun, and we got shifted in with along with my children. I have two kids, and we got shifted to Dehradun. So it was in since 2003 we are residing in Dehradun. Wow. So एज यू मेंशन, आपने भी बताया कि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करने में। सो यू डिड योर बीए, देन यू डिड बीएड, उसके बाद एमएड आपने किया, एंड देन यू मूव्ड हियर। तो आपकी एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट बेसिकली जम्मू में हुई, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन देहरादून। Yes, like as people say that education don't have any age. So I completed just last year my counselor diploma in education. So that was done last year, and it was completed in Dehradun. And at present, I am working with the Pesselwit School as a middle school coordinator, and I am HOD SST department as well. परफेक्ट। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत यंग एज में यू गॉट मैरिड ऑल्सो, एंड उसके बाद में स्टिल यू वर टीचिंग एज वेल along with that up. It was like when I was myself a student, I was teaching, and from since that time till the time I am teaching, and I enjoy spending time with the children, and it is blessing to me that children also love to spend time with me. However, so ma'am, since आप इतने समय से पढ़ा रही हैं, तो you have seen a lot of changes in the education fraternity and industry. इतने सालों से पढ़ाने के बाद, क्योंकि हम देखते हैं पहले का एजुकेशन सिस्टम और अब में बहुत डिफरेंस आ गए हैं। लाइक आई ऑल्सो डिड माई 12th इन द ईयर 2010, और उस टाइम पे जो पढ़ाई थी और इस टाइम पे जो पढ़ाई है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट, जो पहले की पढ़ाई थी, जब मैंने ये प्रोफेशन चूज किया था, आई चूज दिस प्रोफेशन बाय चॉइस. लाइक आई थॉट कि आई विल कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, बट नो डाउट एजुकेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज जो आया है. पहले ज्ञान दिया जाता था बच्चों को, टीचर्स वर एट लिबर्टी. टीचिंग प्रोफेशन वाज अ नोबल जॉब, एंड टीचर्स वर एट लिबर्टी टू टीच द वे, बट दैट चेंज शुड कम इन द चिल्ड्रन. But these days, education is totally based on the child centered. So
teachers are helpless, like they have to work according to the choice of the teacher, no student, and it is like we are not teaching them, but we are selling our products. I feel like that. It is my personal opinion, but yes, it is very sad that even parents don't have time for their children to guide them right way, put them, inculcate values in them. And we are after marks, or we want, parents are also giving luxurious right to their children. हाँ जी And teaching is not that way, the way it was earlier. And I feel personally, what I feel when we were studying, suppose I have knowledge of all the subjects. If you give me any subject to बिल्कुल हाँ teach, जी maths, English, Hindi, I think I can do justice to that. But if we are hiring these days teachers, those who are in particular subject, they are having PhD or something, I don't think they can give that knowledge so properly to the children. They have limited knowledge. Over time, the knowledge was given in a vast way. Any subject, if you are teaching, the thorough knowledge was children were having at that time. This time, the time which is going at present, I feel like children are having very limited knowledge. That is bifurcation of unit tests. There are so many things. Earlier, whole book used to be covered. यस एब्सोल्युटली So I feel like that. This is my personal opinion. नहीं, नहीं एंड सुनीता मैम आई थिंक कि हमारे जो ऑडियंस है ये भी इससे एग्री करेंगी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ लगती है कि एजुकेशन अब जो है वो बिज़नेस बन के रह गया है। क्योंकि पहले के टाइम में जो मेन एम्फेसिस था वो था कि बच्चों को सिखाना है। उस टाइम पे एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी स्कूल में बहुत हुआ करती थी, जो आज के टाइम में कंपैरेटिवली लिमिट हो गई हैं। सो वी ओनली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स की जो बच्चों का जो फोटे है। जब हम लोग स्कूल में थे एंड आई एम श्योर आप लोग भी जब लोग स्कूल में रहे होंगे तो उस टाइम पे बच्चों को हर एक एक्टिविटी में होना ज़रूरी था। अब हमने ऑप्शंस दे दिए हैं बच्चों को एंड आई एम श्योर आप रेजिडेंशियल स्कूल में हैं, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी इस चीज़ की। सो यू गेट ऑप्शंस कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है। आपको लगता है इसका इफ़ेक्ट बच्चे के माइंड स्किल पे या माइंडसेट पे पड़ता है? जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, मुझे ये लगता है कि वो जैसे हमें प्रीवियस स्कूल में जो हमारी पीछे की एजुकेशन हम देखें, जो लोग बच्चे अपने गुरुकुलास में भेजते, इवन जो राजा महाराजा थे वो भी अपने बच्चों को गुरुकुल्स में भेजते थे। वहाँ क्या होता था, सपोज आज वो राजा हैं, कल वो ना रहे हैं राजा, तो वो उनके बच्चों की ऐसी ट्रेनिंग होती थी कि वो अपनी लॉन्ग लाइफ में वो जो स्ट्रगल्स हैं, जो भी उनके चीज़ें वो फ्यूचर में फेस करेंगे, उनके लिए तैयार किया जाता है। तो रेजिडेंशियल स्कूल अभी भी मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में भेजते हैं तो उनका जो सेल्फ डिपेंडेंट होना और वो रिस्पॉन्सिबल बनना, वो फ्यूचर लाइफ के लिए मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर तैयार होते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चे अब पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जिनके पास बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की। मुझे लगता है उनकी ग्रूमिंग उस तरह से नहीं हो पाती जितनी रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों के साथ होती है, क्योंकि वहाँ 24 घंटे उनके साथ अध्यापक, वार्डन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल होती हैं। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर अपने आप को ग्रूम कर पाते हैं।